क्या आपको बीबीए के बाद करियर ऑप्शन को लेकर के डाउट है कि बीबीए के बाद एमबीए करूं, जॉब करूं या फिर समथिंग डिफरेंट? तो आज हम एक ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बीबीए स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है, एंड दैट इज ग्रोथ मार्केटिंग। एंड टू टॉक अबाउट दिस वी हैव समवन हु हैज ऑलरेडी बीन इन योर शूज। उन्होंने भी अपना करियर बीबीए से ही स्टार्ट किया था एंड नाउ ही इज द एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ एंड मार्केटिंग एट सनस्टोन, वंशज बत्रा। So welcome Vanshish, thank you so much for joining us today. Since you have already done BBA and reached this leadership level, I think you are the best person to decode growth marketing career to our students. So let's just start it. Thank you for having me here. So the first question which I want to ask you is that if you had to explain growth marketing to our students in a simple way, so how would you define it? Okay, so जो regular marketers होते हैं उनका काम होता है क्रिएटिविटी दिखाना, मे बी से होर्डिंग्स पे काम करना, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लगाना, या फिर आपका कुछ भी सोशल मीडिया चलाना, डिजिटल कैंपेन्स रन करना। बट ग्रोथ मार्केटर का जो काम होता है, ही इज ऑलमोस्ट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ही इज समवन हु इज एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली जस्ट अंडरस्टैंड द मार्केटिंग बिट बट ऑल्सो कोरिलेट मार्केटिंग विद द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। So someone who stitches the gap of a marketing team to make them do what they are doing to ensure that business ends up meeting it as a goal. Maybe say from defining a GTM, which is a go-to-market strategy for any company, कि अगर हमको ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसका GTM क्या होना चाहिए। अब इसको अचीव करने के लिए हमको क्या क्या अलग अलग वर्टिकल्स में काम करना है, उस पे हमारा एक्विजिशन कॉस्ट क्या आएगा। तो समवन हु स्टिचेस मार्केटिंग विद द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर मेट इज समथिंग व्हाट अ ग्रोथ मार्केटर डज। अगर कोई चीज, कोई काम करने में नॉर्मली मार्केटर को 10 दिन लगते हैं, तो हाउ कैन वी फाइंड अ हैकी वे कि वो काम 10 दिन की जगह 5 दिन में हो पाए, इज व्हाट we have to deal with day in and day out. So it is a role which is full of ambiguities, coming up with new challenges every day and night, is something what a growth marketer does. So as a associate director at Sunstone, आपका normal day in life कैसा होता है? Okay, so you get a issue. Okay. You get a business problem statements which you need to solve via marketing tactics. So something which is full of challenges, which is full of ambiguities. Sometimes at the end of the day you don't realize what you have done the entire day because you are just figuring out what is the correct strategy to get this thing done. Right? So not only strategy but also deep execution of new things which you need to do. Basically something which is full of experiments, full of A/B testing, not only in the online world, sometime in the offline world as well. How can we generate more leads? How do we ensure that the lead quality is good? Right? So a lot of different business related problem statement which you need to solve within the marketing point of view is what we get day in and day out. Okay. So our day is full of ambiguities, day is full of strategizing, executing what you decided, and at the end of the day ensuring that whatever you have been doing is something which gives outcome to the organization is what we deal with. Okay, so if a student want to start their career in growth marketing like from today, so what are the top 3 skills that they should pursue? Okay, so skill number 1 is visualizing the data. आपको बहुत सारे numbers के साथ deal करना है. Okay. So you need to ensure कि whatever data comes in for whatever things you have executed, be it online or offline, आप उसको किस तरीके से interpret कर रहे हो, आप उसको किस तरीके से utilize कर रहे हो further insights निकालने के लिए, is the first thing which one should know. Second thing, that person must be a jack of all trades for all the marketing requirements. मतलब because he needs to understand what everyone else is doing so that he can make sure कि जब जिस चीज को हिंज करने की जरूरत है तब हम उस पार्ट को यूटिलाइज कर सके. सो अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन टर्म्स ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज, बी इट ऑनलाइन, बी इट ऑफलाइन, बी इट सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, बी इट SEO, बी इट AI SEO coming in. So a jack of all trades for all these things. And if you would like me to answer the third part, then I would say
ये हार्ड स्किल नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट स्किल है. ओके. They need to know how to communicate with people around, because आप हमेशा ही ऐसी सिचुएशन में जाओगे जहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा क्विक करना है. Agree. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट दैट इंटरपर्सनल स्किल कि अगर आप जा रहे हो तो आपके कहने पे वो काम हो जाए. यू हैव दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड विद एवरीवन अराउंड इन योर टीम, नॉट ओनली जस्ट मार्केटिंग टीम बट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नीड टू गो टू टेक एंड प्रोडक्ट टू गेट योर थिंग्स रिजॉल्व्ड. Sometimes you need to take help from the operations team to execute things, right? So that particular gap, if you have that kind of a bond, if you have that kind of a structure with everyone within the organization, or maybe some of your vendors as well, जिनसे आपको externally चीज़ें execute करवानी होती है, तो वो. And at the same time you need to be patient enough to ensure कि मेरे को नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर कि हम जो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बट वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट? सो यू नीड टू बी पेशेंट, प्लस यू नीड टू बी कम्युनिकेटिव इनफ, एंड यू नीड टू क्रिएट पर्सनल बॉन्ड्स विद एवरीवन अराउंड. ओके. सो मैंने ये बहुत सुना है कि मार्केटिंग में करियर परस्यू करने के लिए यू हैव टू डू MBA, या फिर ग्रोथ मार्केटर में आगे बढ़ने के लिए MBA तो होना ज़रूरी है, since it gives the higher level of knowledge. So क्या is it right, like MBA उतना important है? So to be honest, the answer is big no. So I am a BBA graduate myself, and I've been working in different startups for last 7 years. Today I'm here as an associate director at Sunstone. Previous to this I was into real money gaming, and before that I was into market research. Okay. So only thing which you need to ensure is that give your 100% to whatever you are doing. Keep upskilling yourself, maybe online or by meeting your mentors and things like that. Other than that, if you are disciplined towards your work, if you are patient enough to do your work, that is more than enough to keep you growing. तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि करियर में हमें आगे ग्रो करने के लिए अपस्किल करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए. तो क्या जो स्टूडेंट्स ग्रोथ मार्केटिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, क्या आप उनको कुछ टूल्स के बारे में बता सकते हो जिससे वो एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं अपना? ठीक है, एक जो बेसिक टूल इज टेक एनी डेटा विजुअलाइजेशन टूल, बी इट टैबलू, बी इट एडवांस्ड एक्सेल, बी इट एनीथिंग एल्स, पावर BI maybe, so that you get a hands-on training on how data looks like and how to read that particular bit. Second thing is not a tool but a necessity these days. You must know where and how to use AI tools to get your things done faster. So you must master AI tools and understand how automation can be done using these particular bits and pieces. Other than this is maybe say few basic marketing tools, as in having a basic idea, as I said, कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए. तो बिट्स एंड पीसेस अबाउट मे बी से कम्युनिकेशन ऑटोमेशन टूल्स लाइक मोएंगेज और क्लेवर टैप, और एनालिटिक्स टूल लाइक हाउ गूगल एनालिटिक्स वर्क, हाउ गूगल एडसेंस और मेटा एड्स वर्क, राइट? बिकॉज आपको कभी कभी योर solution can be to run a meta ad on this. At the same time आपको कंटेंट जनरेट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप AI टूल्स का यूज़ भी करोगे. आप हर चीज़ के लिए आपको देखना है कि आपने जो भी चीज़ें करी उसका पॉजिटिव रिजल्ट है कि नेगेटिव रिजल्ट है, उसके लिए आपको डेटा विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट? सो आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल tools is what I believe. मतलब इन डेप्थ आपको शायद सबका नहीं होगा, पता होगा तो चलेगा, बट आपको ऊपर से पता होना चाहिए कि हमको किस टाइम पे किस टूल को यूज करेंगे तो हम शायद इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे. किस चीज के लिए क्या टूल यूज होता है, फॉलोड बाय automations using AI tools and your this particular piece, any analytics database. Okay, so since you are already a BBA graduate, I wanted to ask कि BBA आपके growth marketing के करियर में कैसे आपको हेल्प किया है? Okay, so अगर मैं भी बाकी अपने दोस्तों की तरह या बाकी अपने बैचमेट्स की तरह रहा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता. What I would recommend is कि अगर आपको नॉट ओनली ग्रोथ मार्केटिंग या किसी भी अच्छे स्टार्टअप में जाना है या आपको कुछ भी अलग करना है लाइफ में विच कैन गिव यू अ स्टीप ग्रोथ या स्टीप ट्रैजेक्टरी, तो जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विथ
योर करिकुलम इन विच यू वांट टू, मतलब जो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है. Okay. Okay, so during my tenure, within 3 years, I ended up doing like 4 internships Great. in different industries. One was into restaurants, one was into logistics, one was into market research, and from this market research internship only I end up getting my this particular my first company's PPO as well, and one was into आपका health insurance. Okay. तो 4 अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, उनका बिहेवियर समझा. ठीक है. अदर देन दिस आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ डायरेक्टर जनरल फॉर द MUN सोसाइटी फॉर माय कैंपस. Oh, great. तो हम वहाँ पे हर साल एक 500 बच्चों का इवेंट होस्ट करते थे. हमारी ही जिम्मेदारी होती थी उन बच्चों को कैंपस लेकर आना, इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग दोज schools to send those kids to our campus, sponsors लेकर आना, maybe उस event में पूरा दिन क्या चलेगा, how would the experience look like, branding कैसे होगी campus के अंदर. तो अगर आप उस टाइम पे ये सब चीज़ें स्केल कर पा रहे हो, और उस टाइम पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, बिकॉज नो वन इज पेइंग यू. खराब भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई आपके काम के ऊपर जज नहीं कर रहा. ठीक है. आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप अगर ऐसे टाइप का कर रहे हो, या फिर आप अपने किसी भी क्लब के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो, देन ऑल्सो इट विल गिव यू अ सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर. ठीक है. या फिर अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है एंड यू हैव गॉट सम स्किल्स, बी इट एज न्यू एज रील मेकिंग ही है आपके पास. ठीक है. या फिर आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हो, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि समथिंग यू आर गुड एट, जस्ट लॉग इन इनटू मल्टीपल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स. उनके लिए आप काम करो, आपको अर्ली एक्सपोजर मिलेगा. यू मे नॉट नो कि उधर ही से ही आपको फ्यूचर में आपकी जॉब या आपको फर्स्ट एंट्रेंस मिल जाए. ऑल्सो अदर देन दिस व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन ऑल्सो डू फ्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्टिफिकेशंस फ्रॉम a lot of different websites available, be it edX, be it Coursera, or even Google has their own Google learning platform. तो वहाँ पे जाके आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, AI टूल्स को कैसे चलाते हैं उसके ऊपर ऑटोमेशन को लेकर सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, डेटा को कैसे विजुलाइज करें, उसको इंटरप्रेट कैसे करें उसके ऊपर कर सकते हो. सो आई ऑल्सो एंडेड अप डूइंग लाइक 3-4 different certifications, which was more or less from the Google learning platform itself, which also gave me a bit of a head start to be someone who could stand out outside the crowd other than my batch. Okay, got it. तो दैट मीन्स कि बस आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर करियर टू स्टार्ट समथिंग. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल हर एक फील्ड में AI एंटर कर रहा है. सो आई वांटेड टू आस्क, क्या ग्रोथ मार्केटर्स के ऊपर AI का असर होगा, और अगर होगा तो किस लेवल तक हो सकता है ये? यार, तो AI आया है ना, तो तब से हमारे लिए चीज़ें और बेटर हो गई है, ख़राब होने की जगह, टू बी ऑनेस्ट. ओके, नाइस. बिकॉज अब होता क्या है कि बहुत सारी केसेस में, एज वी सेड, वी आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वी आर नॉट समवन हु हैज इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. ओके, गॉट इट. तो इट हेल्प्स अस टू क्विकली रिसर्च अपॉन ऑल द पॉसिबल थिंग्स, ऑल द पॉसिबल स्ट्रेटजीज. GTM बनाने में हेल्प करता है. तो लेट मी टेल यू वन वेरी क्विक थिंग, कुछ भी हो जाए अगले 10-15 साल में तो AI से ग्रोथ मार्केटर्स की जॉब पे तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला. ठीक है. बल्कि इट हैज़ एडेड एडवांटेज कि अब हम जो काम एग्जीक्यूट करने में पहले शायद 2 दिन लगाते थे, अब वो हम काम आधे दिन में, 1 दिन में कर लेते हैं. ठीक है. बिकॉज वी गेट इन्फॉर्मेशन रियली क्विक, वी आर नाउ एबल टू ऑटोमेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन प्रोवाइड देम विद देयर डेटा एंड दे कैन गिव अस क्विक इनसाइट्स. ठीक है. तो फॉर अस AI इज अ पॉजिटिव थिंग. ठीक है. is all what I would say, and उस पे उनकी jobs पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि you will be able to redirect your work in a much more meaningful and in a right direction is what I believe. Let me be very true and honest with you. If you know how to use AI in today's world, it will never take away your job, not only in growth marketing but in all the particular domain, is what I believe. बट अगर आपको नहीं पता कि AI टूल्स का यूज करके आपको अपना काम कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो someone else knows it really well. It will end up taking away your jobs. Okay, so now I want to know कि एक ग्रोथ मार्केटर जो फ्रेशर स्टूडेंट है, उनकी इंडिया में एवरेज सैलरी पैकेज क्या होता है, एंड व्हाट इज द करियर आफ्टर 5 years इन दिस फील्ड? Okay, so
I will be talking about people who are graduates from maybe say a tier 2 or a tier 3 college. Okay. I'm not including those who are from a premium category college because that's totally a completely different league, and I am assuming that most of us who are listening to this particular content is from this particular background only. And college. Yeah. So यार देखो स्टार्टिंग ना सबकी एक सर्टेन बेंचमार्क से होती है इंडिया में, agree. which is 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख. सिमिलर लाइन से मैंने भी स्टार्ट किया था. ठीक है, बट ग्रोथ मार्केटिंग का ना एक ब्यूटीफुल चीज है कि अगर आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, ठीक है, और इफ यू आर एबल टू क्रैक व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, या फिर आपने जो क्रैक कर दिया वो आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी सेम चीज चाहिए, तो इट डज नॉट टेक टाइम्स टू गेट डबल ट्रिपल्ड और इवन मोर वेरी फास्ट एंड क्विक. ठीक है, सो एंड ग्रोथ मार्केटिंग इज समथिंग, अगर उनको पता है कि यार इस बंदे में जुनून है करने का, तो इवन इफ यू स्विच इंडस्ट्रीज एंड यू एंड अप achieving the numbers or the goal which the organization was aiming for, because growth marketers का काम यही होता है कि business goal achieve करना by hook or by crook using different marketing strategies. अब वो कहीं पे influencer marketing होगी, कहीं पे paid performance होगी, कहीं पे SEO content होगा, कहीं पे कुछ offline चीज़ें करनी होंगी, कहीं पे कुछ experience wow बनाना होगा. ठीक है, तो if you end up doing things which the organization wanted you to do, I know उनको अचीव करना बहुत बार डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि आप 10 चीज़ें करते हो तो शायद 1 या 2 चीज़ जाके चलती है एट द एंड ऑफ द डे. बट अगर आप उस चीज़ को किल कर पा रहे हो, यू आर एबल टू नेल इट, तो इट डज नॉट टेक टाइम टू, मतलब ये ना शेयर मार्केट की तरह है. तो आपको नहीं पता आपका कौन सा शेयर ऐसे परफॉर्म कर जाएगा, बट अगर आपके शेयर्स परफॉर्म करते गए तो योर सैलरी विल आल्सो स्पाइक इन द सेम पर्टिकुलर रेंज, बिकॉज कंपनीज विल वांट यू टू स्टे विद देम फॉर अ लॉन्ग टर्म, और दूसरी कंपनीज के लिए भी आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी, राइट. सो दैट इज समथिंग, अगर आपको सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है तो. सो अगर आप मुझसे पूछो कि हाउ डज 5 year डाउन द लाइन लुक लाइक, यार 2 एस्पेक्ट्स है, एक है सैलरी और एक है स्किल्स. ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर, ग्रोथ मार्केटियर वर्क्स लाइक अ एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस और लाइक अ CEO ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब, और बिकॉज उसका काम यही है कि ये रहा टारगेट, भागो. ठीक है, सो यू एंड अप डेवलपिंग अ लॉट ऑफ स्किल्स, you come up with lot of challenges. So you never know, you are one day ready to become maybe a founder or a CEO of a company, because उसका काम भी यही होता है कि यार कि ये गोल है, इसको अचीव करना है, पीछे इन्वेस्टर्स बैठे हैं, या फिर कंपनी ने अगर ये नहीं किया तो कंपनी बंद हो जाएगी. So like me, I own like couple of top 5 organizational goals. तो अगर मैं कंपनी के 5 गोल में से 2 गोल मैं और मेरी टीम ओन कर रही है, तो वी ओन 40% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो यू कुड अंडरस्टैंड कि ग्रोथ मार्केटिंग टीम इज हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंपनी, और उनका खुद का एक्सपोजर कितना ज्यादा होता होगा डे इन एंड डे आउट. ठीक है, तो इट्स नॉट ऑफ अ बिग डील दैट यू एंड अप being called as a CEO of the particular domain या फिर market. और यार सैलरी तो मतलब as I told कि it is like shares, अगर आप चीजें अचीव करते जा रहे हो, people have a trust in you, क्योंकि shares के प्राइस बढ़ते हैं जब उनको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होता है. So on the similar lines, maybe you are starting at 4 lakh rupees, you will be based upon you obviously your achievements and everything, you could be at 40 lakh rupees or even more or less, बिकॉज आप तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें कंपनी के लिए कर रहे हो ना. यू आर नॉट जस्ट जनरेटिंग इंप्रेशंस, यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू. इज व्हाट अ ग्रोथ मार्केटर डज. ओके, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. मतलब ग्रोथ मार्केटिंग में आप कितनी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी. यू विल बी गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स. मतलब आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सारी नॉलेज मिलेगी. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट करियर to pursue. So my last question from you is I just want to ask कि जो BBA students ये वीडियो देख रहे हैं,
क्यों ग्रोथ मार्केटिंग एज अ करियर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन? यार तो आपके लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि आप ग्रोथ मार्केटर में आके खाली मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, ओके, उसके साथ एक वर्ड जुड़ा है ग्रोथ, अग्री, विच मीन्स कि आप एक लीडरशिप टीम के साथ हमेशा जुड़े हुए हो, ठीक है। तो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द टॉप मैनेजमेंट इज व्हाट आई बिलीव, और द सीनियर लीडरशिप ग्रुप। तो आप जब उस एनवायरनमेंट के बीच में रहते हो तो आप अपने आप सारी चीज़ें सीख जाते हो अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। ओके, यू बिल्ड लॉन्ग टर्म नेटवर्क्स विद देम एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, ठीक है। You own how the future of the company will look like. okay, As I told you that I and my team end up owning 2 of the top 5 organizational goals. तो अगर आपने अपने गोल अचीव किए तभी जाके कंपनी के गोल अचीव होंगे. So you are that important for the company. Okay. तो you will always be motivated कि यार मेरे को ये करना है, मैं करूँगा तो ही चीज़ें चलेंगी, वरना शायद चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया, एंड देन यू गेट एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट वर्किंग विद मार्केटिंग टीम, यू वर्क क्रॉस फंक्शनल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आपको हर समय अलग अलग टीम्स की ज़रूरत पड़ती रहती है अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। okay, You end up strategizing a lot. Your number games becomes very sharp क्योंकि आप दिन रात एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, आप A/B टेस्टिंग कर रहे हो, आप ऐप पे भी काम कर रहे हो, आप सड़क पे जाके भी काम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो आई फील कि दिस इज मोर देन इनफ फॉर एनीवन टू लाइक द वर्क दे आर डूइंग, बिकॉज आपकी जीवन में ना कभी भी मोनोटोनस काम नहीं आएगा. इट विल बी अनसर्टेन with lot of ambiguities is what I feel. मतलब you will be experiencing new things. Wow, this was such a great conversation. Thank you so much, Vanshaj, for sharing your journey and insights with us today. My pleasure was all to be a part of this video series. And you students out there watching us, if you need any help or any guidance about how to move ahead in your career, and if you feel that I can be of any help, please don't hesitate to reach me out on my LinkedIn. You can always search for Vanshaj Batra and I'll be right there accepting your request and maybe say reverting back to your messages. One clear takeaway for students who are watching this video is that growth marketing is not just about ads or promotions. It's about strategizing, experimenting, executing and analyzing your customers and the business purpose to drive organizational goals. So if you're someone who enjoy business and taking ownership, and if you get bored easily while doing the same work, or if you're someone who wants challenges in your work, and most importantly if you want to be the jack of all trades, then growth marketing can be the best career option for you. So अगर आप चाहते हो कि हम और भी ऐसे career options के बारे में बात करें with industry experts, तो आप हमें comment में लिख के जरूर बताओ. We will cover that in the next video for sure. Also अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, then don't forget to hit that like and subscribe button. Also share this video with your friends. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए keep learning and keep growing.